When my spirit faints within me, you know my way. In the path where I walk, they have hidden a trap for me. For our meditation this morning, I have chosen from the second book of Chronicles, chapter 29, verse 11. My sons, do not now be negligent, for the Lord has chosen you to stand in His presence, to minister to Him, and to be His ministers and make offerings to Him. Good morning, friends. Do not be negligent, for the Lord has chosen you for His ministry and mission. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is do not be negligent now. Here we understand King Hezekiah, when he came to power, opened the doors of the house of the Lord and repaired them. At that point in time, he brought the priests and the Levites and assembled them, and he spoke to them. He remembered what they all had gone through. He remembered how Judah and Jerusalem had suffered because of the sins and the wrongs they had done against God. And now Hezekiah is saying to the Levites not to be negligent, for the Lord has chosen them to stand in His presence and to minister to Him and set offerings before Him. Friends, this is so very important to remember what God has been doing in your lives. God has put you in a particular place. God has chosen you for a particular ministry and mission. And after experiencing all the goodness and faithfulness of God, if you forget to be faithful unto Him, or if you forget to be in His ministry and mission, the Lord will never accept it. So, remember not to be negligent of the fact what God has done to you. Remember to continue to be in His ministry and mission. Remember to fulfill all the purposes that you have been set in a certain place for. And remember to honor and glorify the Lord. Friends, each of us have been chosen for a particular position, place, family, or community, or society to do His ministry and mission. Let us never be negligent about the fact that we are in that position. Let us always remember it is God who has given us this position, and always glorify the Lord. Gracious God, our Heavenly Father, we thank You, we praise You, we honor and glorify You. Help us, Lord, always to remember to do what You want us to do and glorify You. In Christ's name we pray, Lord. Amen. जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा इतिहास अध्याय 29 और उसका 11वां वाक्य। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़ा रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। आपका दिन आशीषित हो। आप लापरवाह ना बने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी सेवकाई के लिए और विशेष सेवा के लिए। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आप अब लापरवाह ना बने। यहाँ हम देखते हैं कि जब राजा हिजकिय्याह ने राज्य संभाला था, तब उसने परमेश्वर के भवन को खोल दिया था और उस जगह की मरम्मत भी की। उसने याजकों को और लेवियों को इकट्ठा किया और उसने उनसे बातें की और उसने उनको बताया, उसने उन्हें याद दिलाया उन सारी परिस्थितियों के बारे में जिसमें से वे गुजरे थे और किस प्रकार से यहूदा और यरूशलेम पीड़ा में थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए थे। और अब राजा हिजकिय्याह लेवियों से कहता है कि अब वे लापरवाह ना बने, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है कि वो उसकी उपस्थिति में खड़े रहें, उसकी सेवा टहल करें और उसके सामने अपनी भेंटों को लेकर आए। मित्रों, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या क्या कार्य किए हैं। परमेश्वर ने आपको विशेष जगह पर तैनात किया है। उसने आपको एक विशेष सेवा के लिए, एक विशेष सेवकाई के लिए नियुक्त किया है
और जब आपने परमेश्वर की भलाई और वफादारी का अनुभव किया है और जब आप परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता का अनुभव कर चुके हैं और आप उसके प्रति वफादार रहना भूल जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप उसकी सेवकाई में और उसकी विशेष सेवा में बने हुए हैं, परमेश्वर इसे नहीं स्वीकारता है। इसलिए आप निरंतर याद रखें कि आप लापरवाह ना रहें और इस बात को निरंतर याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। आप याद रखें कि आप उसकी सेवा और विशेष सेवा में निरंतर बने रहें और उस उद्देश्य को पूरा करें जिसके लिए आपको उस जगह पर रखा गया है। और याद रखें कि आप परमेश्वर को महिमा दें और उसका आदर करें। मित्रों, हम में से प्रत्येक एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है, अपने घर में, अपने समुदाय में या समाज में, कि हम उसकी विशेष सेवा करें और वह पद जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम लापरवाही ना दिखाएं और निरंतर इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने ही हमें ये पद दिया है और हमेशा परमेश्वर को ही महिमा दे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर याद रखें कि हम वही करें जो तू चाहता है कि हम करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।